Hi guys, am I audible? So, by mistake, the team had put 6 o'clock, but the session usually takes place at 5 o'clock. So, I'm sorry if someone was, but it was 5 o'clock. Okay, so good evening. Am I audible? Audible? So, if for someone it is late, then let's get started. Now, why it is in this view? Okay, so we are going to start with this session. Just a minute. So we are going to start with this session. So this is your most expected questions session, most expected current affairs for 8th May to 14th May, second week of May. 80 questions are going to be there. So I would say please score yourself. It is very important. These are very very important questions that are going to be there. And yeah, let's get started. Okay, so I'm sorry, 5 o'clock the session always takes place, and today also it will start at 5 p.m. 6 p.m. we will start with today's newspaper analysis. So let's quickly begin, and let's wait for someone. Okay, so the first question is UN Security Council has expresses just a minute. So, UN Security Council has expresses deep concern over the maintenance of peace and security in Ukraine and backed peaceful efforts by Secretary General to find a peaceful solution. Name the Secretary General of United Nations. Now, this is the first time that steps have been taken to start peaceful discussions with Russia. राइट रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रहा है उसका पहली बार किसी ने स्टार्ट किया, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Tell me the answer. Antonio Guterres, Ban Ki-moon, Kofi Annan, Boutros Ghali. So yes, इसका आंसर है A, which is great. Everyone gave the right answer. The caretakers of Gyan Vapi Mosque in Varanasi submitted an application in a local court demanding that the court appointed advocate commissioner who was asked to videograph a Hindu site located behind the western wall of the mosque be replaced as he was acting in a biased manner. Name the advocate commissioner. Who is the advocate commissioner? Wrong. Everybody. Who is the advocate commissioner? Vishal Mishra, Aditya Pratap Singh, Ajay Pratap Singh, Ajay Kumar Mishra. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू. यू नीड टू नो अबाउट, आपको सभी डिटेल्स पता होनी चाहिए इस इशू के बारे में. येस, आंसर इज डी. चलिए आगे चलते हैं फटाफट से. द केयर टेकर्स ऑफ ज्ञानवप्पी मॉस्क इन वाराणसी सबमिटेड एन एप्लीकेशन इन अ लोकल कोर्ट डिमांडिंग दैट द कोर्ट अपॉइंटेड एडवोकेट कमिश्नर हु वाज आस्क्ड टू वीडियोग्राफ अ हिंदू साइट लोकेटेड बिहाइंड द वेस्टर्न वॉल ऑफ द मॉस्क be replaced as he was acting in a biased manner. Name the temple that is said to have been located behind the western wall of the mosque. कौन सा टेम्पल है? टेम्पल का नाम जयंती देवी, सकेतड़ी शिवा टेम्पल, माँ श्रृंगार गौरी, श्री माता मनसा देवी. कौन सा टेम्पल है? वेरी गुड, मिक्स इट अप. वेरी गुड. ये बहुत ज्ञान वप्पी मॉस्क का जो इशू है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस मॉस्क के बारे में. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, यू शुड नो अबाउट इट. यस, सी माँ श्रृंगार गौरी इज़ द आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट. आगे चलेंगे. The Chief Justice of India, N.V. Ramana, expressed deep concern over the rising number of attacks faced by doctors and medical professionals in the line of duty. CGI was releasing a comprehensive guide titled Atlas of Breast Electrography and Ultrasound Guided Fine Needle Cytology, co-authored by Dr. Colonel C.S. Pant and who's the other author? Sir Alexander Fleming, Daniel Hale Williams, Helen Brooke, Tossing, Dr. Vinita Kapoor. Who is the person? So answer for the question is D, Dr. Vanita Kapoor. Okay, next is North Tech Symposium organized by the Army's Northern Command, where over 160 Indian companies showcase their products. Where is the Northern Command situated? तो हमारी जो आर्मी की कमांड्स है डिफरेंट, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है पेपर्स में. ठीक है, चंडी मंदिर, दिल्ली, पठानकोट, उधमपुर. बताइए कहाँ पर है? वेयर इज़ द नॉर्दर्न जो आपकी कमांड है लोकेटेड है?
तो इसका आंसर है डी, उधमपुर के अंदर ये हुआ है। एंड यू शुड नो कि ये स्टार्टअप से रिलेटेड जो चीज़ है वो ही है, इस सारे के बारे में यू शुड ऑलवेज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इशूड बाय द आर्मी फॉर प्रिक्योरमेंट ऑफ न्यू सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट वुड बी इशूड ओनली टू। देखिए सबसे पहले तो आपको AON की फुल फॉर्म पता होनी बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। इसका मतलब कि ज़रूरत है तो वो इंडियन उसको बताएंगे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो उस चीज़ का सोल्यूशन लेकर आते हैं, आर्मी को देती हैं, तो आर्मी उसको वो बताएंगी। तो ये इंडियन कंपनीज़ के लिए उन्होंने किया है, ठीक है ना। आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम है उसके अंदर, नेम द जज हु रिसेंटली बिकेम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु वाज द जज ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो अभी 2 जजेस अपॉइंट हुए हैं जिनके बारे में हमने कम से कम 3 से 4 बार डिस्कशन करी है। तो वो कौन से जजेस हैं जो कौन से जज हैं जो जस्टिस आए हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर? जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जमशेद बुरजौर पर्दीवाला, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर। हाँ, तो इसका आंसर है ए, जस्टिस सुधांशु धूलिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स हु अटेंडेड द 14th कॉन्फ्रेंस एंड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ and family welfare slammed the World Health Organization for its estimate of 4.7 million COVID related deaths in India, saying it was baseless and intended to show the country in a poor light. The 3-day conference of the CCHFW, an apex advisory body of the Ministry of Health and Family Welfare, was held at. अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो आपसे निकल सकता है वो ये भी पूछ सकते हैं कि CCHFW की फुल फॉर्म क्या है, क्या वो जो 3-day कॉन्फ्रेंस है वो क्या है? एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है किसकी की? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। तो ये कहाँ पर करी गई, हुई कहाँ पे थी? तो आपको बता दूँ ये गुजरात में हुई थी। अब गुजरात के कहाँ पर हुई है, पर्टिकुलर प्लेस का नाम क्या है वो मुझे बता दीजिए। बनखांस्था, बारूच, भावनगर, केवाड़िया। यस, इसका आंसर है केवाड़िया, डी में हुई है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द सेंटर एंड स्टेट्स टू रिस्पॉन्ड टू अ रिपोर्ट रिकमेंडिंग स्पोर्ट्स टू बी एक्सप्रेसली मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि अभी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो स्पोर्ट्स है उसको राइट टू स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स जो है उसको फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए। तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर अगर फंडामेंटल राइट बनेगी तो बनेगी, तो वो आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है। The Supreme Court asked the center and states to respond to a report recommending sports to be expressly made a fundamental right under which article of under Article 21 of the Constitution. A report submitted by the amicus curiae senior advocate Gopal शंकर नारायणन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने, एमिकस क्यूरे कौन होता है? जो कोर्ट अपॉइंट करते हैं कि हमें इस कोर्ट में केस में हेल्प करो, ठीक है ना। तो वो अपॉइंट करे गए थे, उनका नाम क्या है? एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन। सजेस्टेड दैट द नैरो फेज स्पोर्ट बी, तो वो कहते हैं कि जो स्पोर्ट है, वर्ड स्पोर्ट है, वो बहुत ही नैरो फ्रेज है, तो किस चीज़ से रिप्लेस करा जाना चाहिए? विच इज़ अ टर्म इस्टेब्लिश्ड एज अ राइट इन द लीडिंग स्पोर्टिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। स्पोर्ट्स एजुकेशन, होलिस्टिक फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल लिटरेसी, फिजिकल एजुकेशन। बताइए क्या है उसके अंदर? तो वर्ड जो इन्होंने बोला है वो है फिजिकल लिटरेसी, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। इसका आंसर था सी, विच कंट्रीज गवर्नमेंट इज ऑर्डरिंग वुमेन टू फुली कवर फुली इन पब्लिक आइडली विद द ट्रेडिशनल बुरका। तो बुरका जो है वो कहाँ पे? अगर हम यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगाएं तो कौन सी कंट्री है जो ऐसे ऑर्डर्स देती है, ठीक है ना। पाकिस्तान ठीक है, मुस्लिम कंट्री है, बट ऐसे ऑर्डर नहीं देती। सऊदी अरेबिया भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान और सीरिया के अंदर ऐसे ऑर्डर्स आते हैं, और अभी तक ज़्यादा ऐसे ऑर्डर्स अफगानिस्तान से ही देखे जाते हैं। तो अगर मैं कॉमन सेंस भी लगाऊं तो मेरे ख्याल से इसका आंसर अफगानिस्तान होगा, और आंसर अफगानिस्तान ही है। Ukraine says that it has destroyed another Russian warship near the Black Sea's Snake Island, where Ukrainian forces were awarded for heroism after rebuffing Russian demands to surrender. Ukraine's defense ministry said in statement an armed drone has destroyed a Dash class missile class landing craft and a missile defense system. तो कहाँ कौन सी थी वो, कौन सी क्लास को बिलोंग करती है? रोपूचा, तापिर, सरना और, तो इसका आंसर है सरना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे। FSSAI इज एक्सपेक्टेड टू इशू अ ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर लेबल्स ऑन फ्रंट ऑफ फूड पैकेट्स एट दैट विल इन्फॉर्म कंज्यूमर्स इफ अ प्रोडक्ट इज हाई इन सॉल्ट, sugar and fat. It is expected to propose a system under which the product is going to be marked with
which has earned the ire of public health experts and consumer organizations who say it will be misleading and ineffective. What is the system of labeling known as also the one India might adopt? ठीक है, बहुत सारे systems हैं, तो इंडिया कौन सा अडॉप्ट करने को कह रहा है? बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आ रहा है इसके अगेंस्ट. ठीक है, वार्निंग लेबल, हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम, हेल्थ हेलो, न्यूट्री स्कोर. विच सिस्टम इंडिया इज गोइंग टू अडॉप्ट? is said that India is going to adopt health star rating system. So answer is B. ठीक है, sorry, answer is B. Now in 2032 Olympics are going to be going to take place in which country? देखिए 2023 नहीं पूछा है, 2032 पूछा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. 2032 में कहाँ पे ओलंपिक्स होंगे? ठीक है, जापान, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया. सो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया. ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका जो ये है वो होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. व्हाट इज़ द मास्कॉट ऑफ 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स? तो मैं ये बता देती हूँ, ये जो खेलो इंडिया गेम्स है ये हरियाणा में हो रही हैं अभी, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है ना, धाकड़, बेवो, टस्क, काम द राम. तो इसका नाम है धाकड़. देखिए धाकड़ वो मूवी का भी आई थिंक सॉन्ग का वो था, तो मास्कॉट है. ठीक है, जो ये बैठा है ना यहाँ पे, ये है धाकड़. नेम द साइक्लोन ओवर द साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एंड इज एक्सपेक्टेड टू इफेक्ट पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम एंड ओडिशा. एम्फान, असानी, मैसक, निसर्गा. मुझे पता है, इसको सबको पता है. असानी बहुत बार इसकी डिस्कशन भी हुई है. हाउ मेनी पाकिस्तानी हिंदूज हु वर स्टेइंग इन राजस्थान आफ्टर कमिंग टू इंडिया सीकिंग सिटीजनशिप ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस persecution returned to the neighboring country in 2021, according to Simant Log Sanghathan, a group that advocates for the rights of Pakistani minority migrants in India. 800, 500, 300, 200. बताइए कितने लोग गए हैं? तो इसका आंसर है 800. ठीक है, आगे चलते हैं. Humans eat 14% of the world's surviving species of birds. However, this is not the only reason why this many of the extant bird species are undergoing population decline. A study by 9 renowned avian experts and conservationists has revealed. बताओ कितने परसेंट जो birds हैं वो जो हैं वो अंडर पॉपुलेशन डिक्लाइन फेस कर रही हैं बर्ड्स. इसका जो आंसर है वो है 48%. इसका आंसर है बी, 48%. योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट in Uttar Pradesh swung into action in an even-handed manner, removed around 10,900 loudspeakers from various places of worship, with the initial focus being on the Chief Minister's constituency, Gorakhpur. The Prime Minister's constituency, Varanasi, beside Lucknow and Allahabad, with judgment of the Allahabad High Court, had said that loudspeakers should be removed. तो कौन सी जजमेंट थी? ये हमने एक एडिटोरियल में बहुत आराम से डिस्कस करी थी. देखिए ये जो ऐसी जजमेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए. तो इसका आंसर बताइए. मोतीलाल यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यशपाल सिंह यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सीताराम वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी. तो इसका आंसर जो है वो है ए, मोतीलाल यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी. आगे चलते हैं. The Asian Games 2022 have been postponed to 2023. Where the games are going to take place? तो चाइना के अंदर गेम्स आर गोइंग टू टेक प्लेस. अब वो चाइना के कौन से पर्टिकुलर सिटी में ये लेंगी? हंगांगजू, बीजिंग, शंघाई, वुहान. तो इसका आंसर है हैंगजू. ठीक है. Now, Syrian president met with Iranian leaders in Tehran. Iranian and Syrian media reported, marking his second trip to major wartime ally Iran since Syria's civil war erupted in 2011. Who is the president of Syria? Hafez al-Assad, Abdul Halim Khaddam, Ibrahim Raisi, Bashar Assad. इसका आंसर जो है बताइए जल्दी से. इसका आंसर है डी. आगे चलेंगे. हमने मिस कर दिया क्या? Okay, a hardline security chief who oversaw a crackdown on Hong Kong's pro-democracy movement was elected as the city's next leader in a vote cast by a largely pro-Beijing committee. He was the only candidate and won with over 99% of the votes, in which nearly all the 1,500 committee members were carefully vetted by the central government in Beijing. He will replace current leader Carrie Lam, named the leader. तो इसका नाम है ली, जॉन ली. ठीक है ना, ये हमें याद रखना है. हांगकांग. नाउ नेक्स्ट इज द नेशनल मेडिकल कमीशन डिक्लेयर दैट द MBBS डिग्री फ्रॉम विच कंट्री इज इनवैलिड इन इंडिया? बताइए. बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूक्रेन, अफगानिस्तान. देखिए अफगानिस्तान में तो पढ़ाई उनके लोगों की नहीं हो रही, तो इंडियंस तो वहाँ जाके क्या ही पढ़ाई करेंगे. ठीक है ना. तो ये तीनों कंट्रीज़ के अंदर अब यूक्रेन के साथ इंडिया के कुछ ज़्यादा वो नहीं है, तो आई थिंक पाकिस्तान ठीक है इज़ द आंसर.
तो बी इसका आंसर है। आगे चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन द प्रेस्टिजियस गैस बेस्ड The Prime Minister Narendra Modi dedicated to the nation prestigious gas-based urea manufacturing plant at Ramagundam Fertilizers and Chemicals Limited। ये जो है, ये क्वेश्चन जो है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको पता होना चाहिए। नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि कहाँ पे ये आई है। ठीक है ना, ओके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन प्रेस्टिजियस गैस बेस्ड यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट of Ramagundam Fertilizers and Chemicals Limited. The commercial operations at the plant produced 2200 tons of dash per day and 3850 tons of dash per day and already started in March last year after a gap of 22 years. चलिए इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से। इसका आंसर है, देखिए यूरिया तो मैंने आंसर दे दिया था, तो अगर तुम्हें गैस भी करना है तो अमोनिया और यूरिया आंसर होगा। इसका आंसर है ये। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बारे में। द RFCL इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच ऑपरेटेड अंटिल द यूनिट अंटिल द स्टॉप्ड फंक्शन ऑन March 31st March 1999। तो ये जो डेट है 31st March 1999, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है ये डेट। ठीक है ना। बाय अ 2015 रिवाइवल पैकेज, तो 2015 में इसका रिवाइवल पैकेज आया। ठीक है, ठीक है। वॉज कमीशन विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ, कितनी इन्वेस्टमेंट, ये भी फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6180 करोड़। इट वॉज टारगेटेड टू कम्प्लीट द वर्क्स बाय 2018 बट क्वाइट अ फ्यू डेडलाइंस वर जम्प्ड सिंस देन। तो हमें ये वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट वेंचर किसका था ये इंपॉर्टेंट, कितना पैसा लगा के इसको रिवाइज किया गया ये इंपॉर्टेंट है। Karnataka government has constituted a commission to conduct a study on providing suitable political representation for other backward classes, beside appointing a 3-member pre-tender security committee to curb irregularities in tendering process. The commission, which would look into political representation for OBCs, is headed by whom? Subro Kamal Mukherjee, Dinesh Maheshwari, Abhay Srinivas Oka, Bakata Vatsala। बताइए कौन देखेगा? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो आंसर है वो है डी, कर्नाटका हाईकोर्ट जज बक्सवला। ठीक है। नाउ विच यूनिवर्सिटीज लॉ फैकल्टी सेलिब्रेटेड 100 years ऑफ एग्जिस्टेंस? पंजाब यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज़ द आंसर। ठीक है। ये जो है अभी कौन सी यूनिवर्सिटी को 100 years हुए, कोई बता सकता है मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी को 100 years हुए? देखिए, एट अ टाइम व्हेन द MPs हैव बीन आस्किंग फॉर एन इंक्रीज इन द MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MP लैड फंड, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड रिवाइज्ड रूल्स अंडर विच द इंटरेस्ट दैट द फंड एक्यूज विल बी डिपॉजिटेड इन द, तो ये हमने पढ़ा था MP लैड्स का। ठीक है ना, MP लैड्स का पढ़ा था हमने। कहाँ पे डिपॉजिट होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे तुम्हें एक टिप दे देती हूँ मैं। क्या होता है कई बार एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, अब यहाँ पे ये देखो कंफ्यूजन हो रही है ना इन सभी में। चलो पब्लिक अकाउंट्स को तुम क्रॉस भी कर दोगे, बट ये 3 में कंफ्यूजन हो रही है। तो जब भी तुम ऐसा क्वेश्चन पढ़ो तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, साइड पे ना छोटा सा, वैसे लिखना क्वेश्चन पेपर पे अलाउड नहीं होता, साइड पे छोटा सा स्क्रिबल कर लो, चाहे उसको इरेज कर देना। ठीक है ना, पेंसिल से, सो दैट देन यू लुक एट द ऑप्शन, सो दैट कि तुम इससे पहले कि तुम्हारा ब्रेन वो कन्फ्यूजन वाले मोड में चले जाए तुम आंसर दे सको। ठीक है ना, तो इसका आंसर है ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ द मिनिस्ट्री डेटेड 11th April was convened to the Rajya Sabha and the Lok Sabha only by the last week of April. Each MP is allocated rupees 5 crore। तो ये पता होना चाहिए कितने पैसे दिए जाते हैं, 5 करोड़ दिए जाते हैं MP लैड फंड में। ठीक है, ईच MP को। MP लैड फंड इज रिलीज टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एंड द MPs only have the power to recommend development work. The payment is also released by the designated district authority on completion of the work. So far, the interest accrued on the fund used to be added to MP Lads account and could be used for the development of projects. अभी तक कहाँ पे जा रहा था? MP Lads के अकाउंट में जा रहा था, अब कहाँ जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। ठीक है, तो इसी बात पे सभी सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कितने लाइक है। अरे बाप रे, 3 लाइक! तुम्हें शर्म नहीं आती यार? इतनी मेहनत लगती है क्वेश्चंस बनाने में, पता है, मतलब शर्म करो। चलो सभी लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और ये बताओ, आवाज़ और स्क्रीन अब तो ठीक है ना? बहुत बच्चे कंप्लेंट करते हैं। देखो जिस दिन लाइव बहुत अच्छा होता है ना उस दिन कोई कमेंट नहीं करेगा,
और जिस दिन थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए, आप ये करो, आप वो करो। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल वर्कशॉप एंड स्टोर, सेकेंड ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। ठीक है, वेयर इज़ द वर्कशॉप लोकेटेड? तो वर्कशॉप कहाँ पे लोकेटेड है? तमूलपुर, काकर, दारंग, बोगाई गांव। बताइए कहाँ पर? ये असम के अंदर, बांग्लादेश के बॉर्डर में, असम के पास ऐसा हो रहा है। ठीक है, अभी मुझे असम वाला आई एम नॉट श्योर, बट हाँ ये बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है। ठीक है, इसका आंसर है यस, असम में ही है। ठीक है, तमूलपुर, तमूलपुर इसका आंसर है। असम, वेस्टर्न असम बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन विल सप्लाई आर्म्स एंड एमिनेशंस टू द सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस इन द नॉर्थ ईस्ट एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या करेगी ये चीज़, ये किस चीज़ बनाई जा रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड एन एक्सेम्पशन टू द लॉज गवर्निंग द रेगुलेशन ऑफ कोस्टल जोन्स एंड हैव पेड द वे फॉर गैस पावर प्लांट टू बी सेटअप वेयर। तो गैस पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर सेटअप हो रहा है? अंडमान निकोबार आइलैंड में, लक्षद्वीप में, कन्याकुमारी में, दादरा एंड नगर हवेली में। तो इसका जो आंसर है वो है ए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये सेटअप हो रहा है, क्योंकि अभी तक वहाँ पर डीजल यूज़ होता था विच इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। ठीक है, अब उसके बाद चलेंगे। द पैरामिलिट्री असम राइफल्स फैसिलिटेटेड द सर्वाइविंग सोल्जर्स ऑफ विच ऑपरेशन मार्क्ड इन द कंट्रीज डिफेंस हिस्ट्री एज इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन मोर देन 30 years ago. A team of 15 soldiers of the Assam Rifles 7th Battalion, led by Naib Subedar Padam Bahadur Chaitri, had on May 5, 1991, gunned down 72 Pakistani trained extremists and captured others at 14,000 feet in J&K. ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन दूधी, ऑपरेशन स्टीपल चेस, ऑपरेशन पोलो। तो इसका जो नाम है वो है ऑपरेशन दूधी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चाइनाज गवर्नमेंट इंडिया टू कैरी आउट, चाइनाज गवर्नमेंट टोल्ड इंडिया, ठीक है यहाँ पे क्या आएगा, टोल्ड इंडिया टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन इन अकॉर्डेंस विद लॉज फॉलोइंग क्लेम्स ऑफ कोअर्जन फ्रॉम विच कंपनी ड्यूरिंग ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इनटू इट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली कौन सी कंट्री के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को लेकर। जियोमी, लेनोवो, वन प्लस, हुआवे। बताइए, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, अ चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी वॉज हैंडेड अ 99-year लीज ऑफ विच सी पोर्ट इन श्रीलंका। कौन सा पोर्ट है? रिसेंटली इसके ऊपर हमने पूरा एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा कि दिस कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका। कोलंबो पोर्ट, गेल पोर्ट, ट्रिनकोल माले पोर्ट, हम्बन टोटा। हम्बन टोटा इज द आंसर। ठीक है ना, हम्बन टोटा इज द आंसर। नाउ अंडर द 2017 agreement, श्रीलंका, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूँ। Now, under the 2017 agreement, Sri Lanka Ports Authority created Hambantota International Port Group (HIPG), ठीक है ना, which then became a joint venture after China Merchants Port bought an 85% stake in HIPG as part of Chinese company's $1.12 billion investment in the port. In 2017, a Chinese state-owned company was handing a 99-year lease to the seaport, और कहा जा रहा है कि इसकी वजह से भी श्रीलंका की इकोनॉमिक हालत जो है ख़राब है। Now, 9 crore natural sciences and avian specialists across the globe have revealed that the population of dash, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है अगेन, 48% है इसका आंसर। चलिए, कैनेडा इज प्लानिंग टू पास ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट, विच अदर कंट्रीज हैव ऑलरेडी पास सच एन एक्ट। तो ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट क्या है? ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट क्या है? तो ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट बेसिकली ये कहा जा रहा है कि कंपनीज लाइक फेसबुक एंड गूगल वो एडवर्टीजमेंट से बहुत ज़्यादा कमा रही है, बट एक्चुअली जो कंटेंट डाल रहे हैं उनको इतना पैसा नहीं मिल रहा, स्पेशली मीडिया हाउसेस। ठीक है ना, तो इस वजह से बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो हैं वो बंद हो रहे हैं। तो कौन सी दो कंट्रीज़ हैं? कनाडा तो अब लेकर आ रही है ये लॉ, बट दो कंट्रीज़ पहले से लेकर आ चुकी हैं, और एक कंट्री को इन्होंने धमकी भी दी थी, फेसबुक और गूगल ने, कि हम तुम्हारे यहाँ फंक्शन ही नहीं करेंगे, बट अभी भी उस कंट्री में फंक्शन कर रही हैं। तो द आंसर इज़ ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। हमने एडिटोरियल में पढ़ा था दोनों, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। एक न्यूज़ में ऑस्ट्रेलिया था एंड देन इन अ डिटेल्ड एडिटोरियल वी रेड इट इज़ ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। सो बोथ ऑफ द अबव इज द आंसर। आर्मी इज प्लानिंग टू रिस्ट्रक्चर द एग्जिस्टिंग फॉर्मेशंस इनटू वन। किस चीज़ में फॉर्म करें? व्हाट इज द आंसर ऑफ वन? इज टू हैव फोर्सेज विच आर लीन, एजाइल, टेलर मेड, विच वुड अफोर्ड द कमांडर्स द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोर ऑप्शंस फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट इन द रिस्पेक्टिव थिएटर्स टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स। व्हाट इज वन?
Integrated battle groups, brigade, division, command. Yes, the answer is A. Integrated battle groups बना रहे हैं. Now, who is the sixth apex court judge from the Parsi community? Justice Jamshed Burjor Pardiwala, Justice Sudhanshu Dhulia, Justice Rohinton Fali Nariman, Justice Sam Piroj Barucha. बताइए. बहुत ही इजी आंसर है इसका. जस्टिस जमशेद बरजोर पर्दीवाला. राइट. चलिए. हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गोटाबाया राजापाक्सा, रनिल विक्रम सिंह, महिंदा राजापाक्सा, प्रेमदासा. महिंदा राजापाक्सा तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज ये तो बाहर निकल गए. गोटाबाया प्रेसिडेंट है. ठीक है. तो कौन सा? अनिल विक्रम सिंह. रनिल विक्रम सिंह. ठीक है ना. तो इसका आंसर है डी. आगे चलेंगे. द मास्टर हु एच्ड एन इमेज ऑफ द कश्मीर वैली एंड अ साउंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एवरी टाइम ही स्ट्रक अ कॉर्ड ऑन हिज संतूर. कैन यू नेम हिम? ठीक है. ही रिसेंटली डाइड. शिव कुमार शर्मा, अभय सुपोरू, सतीश व्यास, राहुल शर्मा. आंसर इज ए. शिव कुमार शर्मा. नेक्स्ट. हु वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन फिलिपिन? फिलिपिन में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीता है? बेनिग्नो एक्यूनो 3 रेड्रियो दुतरेरे. यार इसका आंसर नहीं बता देती हूँ. फर्दिनंद बोंग मार्कोस जूनियर. ठीक है. द यूरोपियन यूनियन on accused The European Union accused the Russian authorities of carrying out a cyber attack against the satellite network an hour before the invasion of Ukraine to pave the way for its assault. Name the satellite on which the attack happened. तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि अटैक हुआ था हम पर. तो सबने लाइक कर दिया है वीडियो को या सेशन को? यार वैसे कर दो यार. कुछ नहीं रहता, मतलब लाइक करने में कुछ नहीं रहता. अभी भी 3 ही शो हो रहा है मुझे, तो बहुत ही दुख की बात है. कसाट एरियल बायो सैटेलाइट चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी. बताओ इसका आंसर क्या है? कसाटा आइसक्रीम होती है ना. तो इससे पहले क्या होता है, जब मम्मी कसाटा आइसक्रीम लेकर आती है घर में और दो भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन होती है, एक भाई खा जाता है या एक बहन खा जाती है और दूसरा उसको खाली कवर को देखता रहता है. तो ऐसे ही रशिया वालों ने अटैक करके देख लिया कौन कहाँ पर है, क्या पोजीशन है, और फिर यूरोपियन यूनियन अपनी कसाटा देखता रहेगा. Who was given the Param Vashishta Seva Medal for Distinguished Service of Exceptional Order of President Ramnath by Ramnath Kovind at the Defense Investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan? President Kovind, who is the Supreme Commander of the Armed Forces. ठीक है. उन्होंने दिया. किसको दिया? मनोज मुकुंद नारायणवे, जनरल मनोज पांडे, दलबीर सिंह सुहाग, दीपक कुमार सिंह. इसका आंसर है जनरल मनोज पांडे. चलिए आगे चलते हैं. रिटेल इन्फ्लेशन क्विकन टू एन ऑलमोस्ट 8-year हाई. हाउ मच इट इज? यार 8-year हाई है, 8 month, 8-year हाई है. ये क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है मुझको. इसका आंसर बता दो. इसका आंसर है ए. Now, Finland's leader came out in favor of applying to join NATO, and Sweden could do the same within days. In a historic realignment on the continent, 2.5 months after the Russian president's invasion of Ukraine, the Kremlin reacted by warning it will be forced to take retaliatory military technical steps. Who is the Prime Minister of Finland? Sanna Marin. इसका आंसर है सना मैरिन. चलो. A project called IHCI finds that nearly 23% out of 2.1 million Indians have uncontrolled blood pressure. What is IHCI? India Hypertension Control Initiative, Hypertension Programs and Research, Health Disparities in Hypertension by Group. और इनका 25/25 का प्रोग्राम है. एक मिनट रुको, मुझे पेन उठाने दो. इनका एक प्रोग्राम है 25/25. 25/25 का क्या प्रोग्राम है कि बाय 2025 दे विल रिड्यूस 25% ऑफ बी, मतलब कंट्रोल कर लेंगे 25% ऑफ बीपी. ठीक है. इसका आंसर है ए. इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव. बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये. India's food production could drop 16% and the number of those at risk for hunger could increase by so much by 2030. Due to climate change, says a report by International Food Policy Research Institute on climate change and food systems. I'm sorry for the burp.
25%, 23%, 26%, 24%. इसका आंसर बता दो जल्दी से. यस, आंसर इज बी, 23%. ठीक है, ये परसेंट याद करने इंपॉर्टेंट है. देखो 2023 तक 23%, ठीक है ना, ये तो याद हो जाएगा. आज मतलब वो पिछले वाला. अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स forecast, the ministry said India would be fastest growing economy in 2020-22 in 2022-23 and added the strong growth in economic activity in April lent credence to their this projection. How much is the forecast? Credence मतलब credibility. ठीक है, 8.2%, 8.5%, 6%. देखो 9% और 6% तो है नहीं, तो इसमें कन्फ्यूजन है. बताओ क्या आंसर है. 8.2 इज द आंसर. आगे साइंटिस्ट. अब मैं तुम्हें एक टिप यहाँ पे दे रही हूँ कि जब भी तुम आंसर देखो, अगर तो क्वेश्चन ऐसा है कि तुम ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रखो, तो ऑप्शन, अब तुम्हें क्या पता तुम ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गया नहीं, तो टिंग करके ना अपने दिमाग में आंसर बोल देना, ये आंसर है, अगर याद है तो. अगर आंसर याद नहीं तो क्रॉस आउट करोगे. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैंने अपने दिमाग में कर लिया आंसर क्या है. ठीक है, साइंटिस्ट फ्रॉम द इवेंट, मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद होगा वो टिंग वाला पॉइंट, पहले कैसे होगा. नाउ साइंटिस्ट फ्रॉम द इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप फैसिलिटी एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस held simultaneously at several centers around the world revealed the first image of the black hole at the center of Milky Way. The image of dash gave further support to the idea that a compact object at the center of our galaxy is indeed a black hole, strengthening Einstein's general theory of relativity. Sagittarius A, Pisces B, Capricorn S3, Aries. देखो ये कोई भी नहीं है. Sagittarius A. अगेन आज के न्यूज़पेपर में इस चीज़ पे एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल भी है, वो भी पढ़ेंगे हम आज. अराउंड जैसे ही ये सेशन होगा वैसे ही न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा, तो गाइस स्टे. रिसेंटली द डैश एडिशन ऑफ COVID-19 समिट टुक प्लेस वेयर इन मिस्टर मोदी कॉल्ड फॉर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर फ्लेक्सिबल ऑन इशू ऑफ पेटेंट वेवर्स एंड वैक्सीन अप्रूवल्स. पेटेंट वेवर्स का क्या इशू है? पेटेंट वेवर्स का कि जो प्रोसेस है वैक्सीनेशन बनाने का वो दूसरे देशों के साथ शेयर करने दिया जाए, ताकि हर देश अपनी वैक्सीन बना ले COVID-19 की और बच सके. तो कौन सा एडिशन हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो इसका आंसर है सेकंड एडिशन हुआ. ठीक है, उसके बाद अरे यहाँ पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन है. द सेकंड ग्लोबल COVID-19 समिट को होस्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट, Belize, Germany, Indonesia, Senegal convened over partners and organizations from around the world to accelerate corrective efforts to get shots into arms, enhance access to tests and treatments, protect the health workforce, and finance and build health security for future pandemics and other health crises. ठीक है ना, को होस्ट इन सब ने करी थी, इन सब ने. ठीक है, चलो. दिल्ली हाई कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, has reignited the controversy over legal protection for disregard of consent for sex with marriage, which judge said that struck down as unconstitutional the exception to section 375 of the IPC, which says that intercourse by a man with his wife aged 18 or above is not rape, even if it is without her consent, and which judge rejected the plea to criminalize marital rape, pointing out that any change in the law has to be carried out by the legislature since it requires consideration of social, culture and legal aspects. जस्टिस जमशेद बिरजौल. अब आपको बताने कि कौन से जज ने, दो जजेस थे, एक ने कहा कि मैरिटल रेप है ऑफेंस, एक ने कहा मैरिटल रेप नहीं है ऑफेंस. तो बताओ कौन ने कहा कि हाँ है, किसने कहा नहीं है, ये क्वेश्चन है. जस्टिस जमशेद बिरजौल पर्दीवाला, जस्टिस सुधांशु धूलिया. तो देखिए ये तो इसलिए मैंने डाल दिया क्योंकि अगर आप पेपर में देखोगे ना जिसका नाम ज़्यादा आता है तो उसको डाल देते कंफ्यूज करने के लिए. ये तो न्यूली अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट जजेस है, तो ये तो नहीं है. रोहिंटन फली नरमन, जस्टिस सैम पिरोज बरूचा. तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया रोहिंटन फली नरमन सुप्रीम कोर्ट के. ठीक है, तो केस हेड अब यहाँ पर हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर राजीव शाकधेर एंड हरि शंकर. ठीक है, इन्होंने कहा है कि, तो इन्होंने कहा है कि ऑफेंस होना चाहिए मैरिटल रेप, ये कहते नहीं होना चाहिए. ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए 375 जो है वो रेप डिफाइन करती है और उसका एक्सेप्शन जो है वो क्या कहता है, इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ एज्ड 18 और अबव इट इज़ नॉट मैरिटल रेप. हमने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, आंसर इसका सी है. In the financial year 2021-2022, 90 lakh beneficiaries of the Narendra Modi government's flagship welfare scheme, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY), did not take refills gas cylinders, and over 1 crore beneficiaries got their refills only once.
The scheme was launched on 1st May 2016 in which village of Uttar Pradesh? कौन से गांव में? कौन से गांव में? बालिया, बालिया, ठीक है ना, डी है इसका आंसर. द 12th मीटिंग ऑफ इंटरपोल मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स IMFTF, इसकी फुल फॉर्म भी तुम्हें क्वेश्चन में आ सकते पता होनी चाहिए, इन विच द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कंक्लूडेड with a call for harmonized global efforts to curb competition manipulation. The meeting was held at Abu Dhabi. सब कहते चलो घूम फिर भी आएंगे और मीटिंग भी अटेंड कराते, तो अबू धाबी में रख लिया. Thousands of Palestinians honored Al Jazeera journalist at a memorial service in the occupied West Bank a day after she was shot dead during an Israeli army raid. Israel and Palestinians have traded blame over the killing of Palestinian American. What is her name? Dareen Abu Ghadia, Syed Aburish, Zaid, now ये मैंने याद करवाया था, शिरिन अबू अखले, ठीक है ना. तो जो इनके साथी थे उनकी भी डेथ हो गई है, आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है. एमिंग टू मेक द स्टेट अ ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर फिल्म प्रोडक्शन एंड प्रमोट टूरिज्म, विच गवर्नमेंट लॉन्च अ पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो फिल्म क्लियरेंस that will provide filmmakers all clearances for film shooting from up to 25 agencies depending on the locations in only 15 days. Which state it is? Delhi, Chennai, Gandhinagar, Shimla. इसका आंसर है दिल्ली. आगे चलते हैं. द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ विच स्टेट हैज रिकमेंडेड द स्टेट गवर्नमेंट टू पे ₹25,000 कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर. कस्टोडियल टॉर्चर क्या होता है? जो जेल में पीछे बैठा है और उसके साथ मारपीट करी जा रही है, ठीक है ना. किसने कहा है? पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा. हरियाणा ने कहा है. डी इज द आंसर. आगे चलेंगे. काउंटर टेररिज्म टीम्स फ्रॉम रशिया, चाइना, पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज will gather in which city of the world for Shanghai Cooperation Organization's regional anti-terror structure. देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं चल रही है, तो हम सेम मीटिंग में जा रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं इसमें, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टार क्वेश्चन है, ठीक है. अबू धाबी, दिल्ली, वाशिंगटन, इंग्लैंड, तो दिल्ली में हो रही है और इसकी फुल फॉर्म भी तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हु इज़ होस्टिंग जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज इज टाइटल्ड मानेसर एंटी टेरर 2022. तो लोगों को पता है मानेसर कहाँ पर है, बताया था ना, वहाँ पे मारुति का क्या है, प्लांट भी है, प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे, किसका, मारुति का, ठीक है ना. मैं अपनी गर्दन इसलिए घुमा कर देख रही हूँ क्योंकि मेरे कमरे में कॉकरोच आ गया है और मुझे बहुत डर लगता है. अब वो गायब हो गया तो मुझे और डर लग रहा है. पाकिस्तान, इंडिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है. बताओ मानेसर यार गुड़गांव के अंदर है, तो गुड़गांव के अंदर है तो इंडिया में ही हुई ना. हाँ, इजी क्वेश्चन. हु इज एक्सपेक्टेड टू होस्ट द SCO समिट इन 2023? कौन? इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान. बताओ फटाफट से आंसर आ जाए. इंडिया. चलो. जॉइंट बॉर्डर कॉपरेशन ऑफ द SCO मेंबर स्टेट्स कॉल्ड फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022 विल टेक प्लेस. बताओ कहाँ पे? पाकिस्तान, इंडिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान. बताओ कहाँ पे होगी, जल्दी से फटाफट. पाकिस्तान तो ऐसी चीज़ें कम ही करता है, ठीक है ना. अब ये तीनों रह गए. इंडिया में होगी, कजाकिस्तान में होगी. बताओ. इसका आंसर है कजाकिस्तान के, यहाँ पर हो रही है, ठीक है. नाउ इंस्टेड ऑफ द वर्ड विकलांग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, विच वर्ड इज यूज फॉर देम व्हेन रेफरिंग टू देम इन हिंदी? 2016 में नरेंद्र मोदी ने ये बात उठाई थी कि जो विकलांग हैं उनको विकलांग नहीं बोलना है, तो क्या बोल लेंगे उनको, ये बताओ, ठीक है. गॉड्स गिफ्ट, दिव्यांग, अंग, ईश्वरिया, ईश्वरिया. बताओ क्या बोलेंगे उनको, बताओ बताओ. तो उनको बोलेंगे दिव्यांग. क्या बोलेंगे उनको? दिव्यांग, ठीक है ना. दिव्यांग बोलेंगे. आंसर इज बी. आगे चलते हैं. डिवाइन बॉडी, दिव्यांग का मतलब क्या है? डिवाइन बॉडी. चलो आगे चलते हैं. अ रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास बाय 2 villages banning एज ओल्ड रिग्रेसिव रिचुअल्स दैट ostracize widows is set to become part of the state's policy for women in Harwad village and Mangao village. The resolution passed recently said no woman in the village would undergo the painful rituals of woman widowhood, not womanhood, widowhood. When the husband dies, the woman is subjected to rituals such as wiping her sindoor, removing her mangalsutra, breaking her bangles, and removing toe ring. Similarly, she is barred from any religious or social gathering, and her social status as a married woman is sad. Such rituals deprive her of her rights and violate human rights. Our village bans any such rituals in order to ensure that widows too should be able to live like any other woman, said the resolution. कौन से हैं ये दो गांव, कहाँ पर हैं? हरवाद एंड मनगांव. हरवाद और मैनगांव, याद करवाया था ना.
चलो ये है महाराष्ट्र में, आगे चलते हैं. Who has developed India's first indigenous mRNA vaccine technology for COVID-19? Center for Cellular and Molecular Biology, Council for Scientific and Industrial Research Institution, Serum Institute of India, E-Biological. ए है इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है. हु इज़ द वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? तंकेश्वर कुमार, प्रकाश बांसल, संजीव जैन, शांति श्री दुलीपुड़ी पंडित. डी इज द आंसर. चलिए आगे चलते हैं. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट द स्टैटिक टेस्ट ऑफ HS-200. तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है. HS-200, ठीक है, सबको पता होगा. HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर. ये क्या है? सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ठीक है ना. टेकिंग द स्पेस एजेंसी वन मोर स्टेप क्लोजर टू द कीनली अवेटेड विच ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन. कौन सा स्पेस फ्लाइट मिशन है? गगनयान, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, शुक्रयान, मंगलयान 2, गगनयान. ठीक है, चलिए आगे. ए है इसका आंसर. विच कंट्री हु इज मेंबर नेशन ऑफ नाटो इज नॉट फेवरेबल टुवर्ड्स फिनलैंड एंड स्वीडन ज्वाइनिंग नाटो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए पहले तो यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री ज्वाइन करने का सोच रही. देखो पहले यूक्रेन ने सोचा, ठीक है ना, उसको तो मार पड़ गई रशिया से. ठीक है, अब कौन सी दो कंट्री सोच रही है? फिनलैंड और स्वीडन. ठीक है ना. अब बहुत बच्चे इसमें मुझे पता है आंसर देंगे कि अच्छा रशिया तो ऑप्शन डाला, मैंने डालना चाहिए था. तो इसके अंदर देखिए अब कौन सा मेंबर नहीं चाहता है. अब यहाँ पे मैंने लिखा है अगर एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहे तुम्हें तो वो रशिया ऑप्शन डाल सकता है. ठीक है ना. बट रशिया क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उन्होंने बोला मेंबर नेशन ऑफ नाटो. रशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो. तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? यूके, टर्की, यूएसए, पोलैंड. यूएसए तो चाहता ही है कि सभी मेंबर नेशन उसके पास आ जाए. ठीक है ना. तो कौन सा? यूके ने अग्रीमेंट किया है फिनलैंड स्वीडन के साथ कि भाई अगर वो तुम पे अटैक करेंगे कोई भी तो मैं बचाऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हारा भाई खड़ा हूँ पीछे. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो नहीं है आंसर. तो पोलैंड टर्की में से टर्की इज द आंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द सुप्रीम कोर्ट सस्पेंडिंग पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स अंडर सेडिशन while allowing the Union of India to reconsider the British era law. Sedition falls under which section of IPC? विच सेक्शन ऑफ आईपीसी? मैम ने 200 बार रटाया था. सेक्शन 124A. नो कन्फ्यूजन, नथिंग. द सुप्रीम कोर्ट सस्पेंडिंग पेंडेंट ट्रायल, ठीक है, उसमें 24A के अंदर. तो ये बताओ, इट वॉज आर्ग्यूड इन द कोर्ट दैट नियरली डैश पीपल वर ऑलरेडी इन जेल अंडर द सेडिशन प्रोविजन. कितने लोग हैं? 13,000, 20,000, 15,000, 16,000. इसका आंसर है 13,000. आगे. टर्की इज अगेंस्ट द मेंबरशिप ऑफ स्वीडन एंड फिनलैंड. It says that one of the countries which now is a member of NATO has misused the membership against Turkey. Name the country. अब टर्की ने बहुत क्लियरली बताया कि भाई मैंने एक कंट्री को मेंबर बनने दिया और अब उसने मेरे ही नाक में दम कर दिया, इसलिए फिनलैंड और स्वीडन को मेंबर नहीं बनने दूंगा. पोलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस. इसका आंसर है ग्रीस. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. वाइस प्रेसिडेंट Venkaiah Naidu that Prime Minister Narendra Modi was a phenomena that and that it was a point that even his detractors had to concede. Mr. Naidu was speaking after the यार इसमें क्वेश्चन ये है. Mr. Modi on his completion of 20 years of helming government, first as Chief Minister of Gujarat and later as Prime Minister of India, name the book. कौन सी बुक लिखी है जिसका इनॉग्रेशन किया है? Modi at 20 dreams meet delivery, social harmony, the 20 years of living a dream, the legendary Prime Minister of India. Answer is A. बहुत इंपॉर्टेंट है. The United Arab Emirates President Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan died aged 73. The president of oil rich Gulf state who was rarely seen in public is likely to be replaced by his half brother. Who will be the president? यहाँ पे लिखा है पूरा. Who will be the president of UAE? बताओ जल्दी से. इनके नाम बड़े डिफिकल्ट हैं तो बता दो पढ़कर. ठीक है, मोहम्मद बिन जैयद. आंसर इज मोहम्मद बिन जैयद. ठीक है, आगे चलते हैं. The United Arab Emirates President Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan died aged 73. The president of the oil-rich Gulf state who was rarely seen in public took over as the president in which year? 2004. मुझे पता है तुमने आंसर पहले ही देख लिया था. On May 5, 2022 the Jammu and Kashmir. देखिए अगर आप टॉपिक मेरे से पूछना चाहते हैं कि दी वीक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से थे, तो एक तो ज्ञान बप्पी जो मॉस्क वाला इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए.
दूसरा जो मेजर इशू आया और जिसके बारे में हमने बहुत पढ़ा भी, वो है जम्मू एंड कश्मीर की डीलिमिटेशन कमीशन। 2022 वाले जो पेपर दे रहे हैं और 2023 में जो देने वाले हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर एक्सपेक्ट कर लेना। तुम्हें पता होना चाहिए कमीशन को हेड कौन कर रहा था, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। बहुत आई थिंक 10th या 11th मई का न्यूज़पेपर के अंदर एक एडिटोरियल आया था, चाहे वहाँ पे वापस जाकर उस चीज़ को पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो हम पढ़ रहे हैं, बट ये आपको जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट। एक जो यूरिया का प्लांट दोबारा से वापस से सेटअप किया गया, वो बहुत छोटी न्यूज़ है, 4 मेन पॉइंट्स बनते हैं उसके। Commission submitted its final report 2 years after it was appointed to redraw the electoral boundaries in J&K. First, J&K is split into two divisions, with Jammu having 35 assembly seats and Kashmir 46. After the Commission's final draft, what is the number of seats for Jammu and Kashmir? ये बहुत ज़्यादा important है, इस पे बातचीत भी बहुत हो रही है कि कितनी सीट्स जो हैं वो अब दी गई हैं जम्मू को और कश्मीर को। 43, 47, 50, 52, 101, 102, 56, 58। सो द आंसर फॉर दिस इज 43, 47। ओके, चलिए, जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन सबमिटेड एट फाइनल रिपोर्ट इन विच इट हैज़ रिकमेंडेड द सेंटर टू नॉमिनेट एटलीस्ट 2 डैश टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोला है? हिंदूज, पारसीज, मुस्लिम्स, कश्मीरी पंडित। देखिए, एक तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के लिए उन्होंने बोला है कि कुछ होना चाहिए, और दूसरा बोला है कश्मीरी पंडित्स के लिए। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। चलो, इसका क्वेश्चन तो मैं तो आंसर तुम्हारे सामने ही है, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड केम इनटू एग्जिस्टेंस in dash when Ireland was partitioned by Government of Ireland Act 1920 passed by the British Parliament 1920, 2022, 21 में ये हुआ। ठीक है ना, 1921 is the answer। चलिए आगे चलते हैं। In Northern Ireland, sectarian tensions between the Protestants and Catholics led to 30-year period of militant strife called dash the Troubles। अच्छा, ट्रबल्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ये जो आंसर है ना, कॉल्ड द ट्रबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स हैं वो आपस में लड़ रहे थे, और जब लड़ाई होती है तो क्या होती है? ट्रबल होती है, तो इन्होंने उसको ट्रबल्स, द ट्रबल्स नाम दे दिया। विच बिगैन इन लेट 1960 एंड कॉन्टिन्यूड अंटिल द साइनिंग ऑफ, बहुत बार पढ़ा हमने, इसका ऑप्शन नहीं देने वाली, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट इन 1998। इसका आंसर है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट इन 1998। Now, in Northern Ireland, who had since 1921 never won a decisive vote, this changed on May 7, 2022, as it was declared that one, तो तुम्हें वन का नाम बताना है, वन had won 27 seats out of 90 or 29% of the preference vote, while its closest unionist competitor, the Democratic Unionist Party (DUP), dropped its seat tally to 25. Name the one mentioned in the above line। वन कौन है? Fine Gael, Sinn Féin, पास्चाल डोनहे, लियो वाडकार। इनको हमारे नाम डिफिकल्ट लगता है, हमें इनके नाम में मतलब नहीं निकलता है ना, अब इनको हमारे नाम कितने अजीब लगते हुए, तो इसका आंसर है बी, सिनफे। ये ऐसे लगता है फिश का नाम है, आज क्या खाओगे इतना डिनर में, सिनफे वाली फिश ला दो। ठीक है, चलो आगे। Which country will host leaders and top officials of the Association of Southeast Asian Nations ASEAN Special Summit? USA, UK, India, China। देखो, दो ही बहुत कंट्रीज हैं जो इनको लुभाने की कोशिश कर रही हैं एशियान को, तो अभी यूएसए लुभा रही है, और आज के न्यूज़पेपर में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या दिया इन लोगों को। ठीक है ना, ठीक है, पटाना तो है तो कुछ देना तो पड़ेगा ना पटाने के लिए। अच्छा, मुझे बताओ कौन कौन लाइक नहीं कर रहा है इस सेशन को, कौन गंदे बच्चों यार, तुम पता है कितना टाइम लगता है क्वेश्चंस निकालने में, तुम्हें क्या लगता है आसान है? और हाँ, आज के सेशन के बाद 6 o'clock तो हमारा न्यूज़पेपर का सेशन होगा आज, तो सभी वहाँ पर आएंगे पक्का से, हाथ खड़े कर दो चार्ट सेक्शन में। नंबर 1, नंबर 2, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसके ऊपर आपको ये सारी की सारी जो पीपीटी है वो मिल जाएगी। तो बहुत बच्चे कहते हैं कि हमें मिलती नहीं है, बट मैं वहाँ डाल देती हूँ। ठीक है ना। इन द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस एशियान स्पेशल समिट, विच एशियन मेंबर कंट्री विल नॉट बी रिप्रेजेंटेड एट द समिट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए जब एग्जामिनर को डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना होता है ना, तो वो कुछ अलग सी चीज़ उठाकर डाल देता है। ठीक है ना, बहुत अलग सी चीज़ उठाकर डाल देता है। क्यों डालता है वो ऐसे? ताकि वो तुम्हें टेस्ट करेगी तुमने कितना डीप में पढ़ा है, कोई ऐसा तो नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़कर आ गए। तो ये क्वेश्चन वो है कि एशियन कहाँ पर हुई, स्पेशल समिट किसने को होस्ट करी, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन जो आएगा कि उसमें क्या दिया गया, क्या किया गया उसके अंदर, ये सेकंड क्वेश्चन है, और जो इंपॉर्टेंट बनेगा ये अलग सा बनेगा। ठीक है ना। कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार की एम्प्टी चेयर रखी जाएगी। डिससेटिस्फैक्शन क्यों है? काउट, वहाँ पे मिलिट्री रूलर आ गया, तो इनको क्या चाहिए? डेमोक्रेसी। ठीक है ना।
चलिए आगे चलते हैं। डी है इसका आंसर, म्यांमार है इसका आंसर। इन इंडिया अर्ली दिस ईयर द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, द कंट्रीज competition watchdog, ordered investigations into Google, the basis being the bargaining power imbalance and denial of fair share in the advertising revenue as alleged by the Dash, a group of digital arms of India's leading media companies। देखिए इंडिया के अंदर भी वही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस वाला लॉ लेकर आने की कोशिश करी जा रही है और मीडिया कंपनीज के बेसिस पे एक एसोसिएशन है जो लड़ रही है। उस एसोसिएशन का नाम आपको यहाँ पर बताना है। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन, इंडियन प्रेस एसोसिएशन, इंडियन मीडिया एसोसिएशन, इंडिया प्रेस एंड डिजिटल एसोसिएशन। तो इसका है आंसर ए, DNPA। तो DNPA की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं वो आपसे, आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है इस बात पे? और किस किस को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए इन द चैट सेक्शन सभी बता दीजिए कि सेशन अच्छा लग रहा है या नहीं। ठीक है, चलो। और इसी के साथ जो हमारा सेशन है वो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ शेयर करो यार, बहुत मेहनत करी हूँ, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए। एंड बताओ सेशन कैसे लगा, कमेंट करके भी बताना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और 6 बजे हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस है, वहाँ पर भी आ जाना। ठीक है ना, 6, 2, 6, 5 पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बस मैं पानी का ग्लास पी कर आऊँगी और फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।